Hi friends, welcome to my channel. I'm shooting outdoors in my favorite garden and I'm feeling very pleasant. It's when I broke the routine, it's very difficult to get back to routine. It's not that I don't do other things for fitness, but वो early morning का जो fitness होता है, जो oxygen levels होते हैं, we cannot be compared, right? And आजकल तो इतनी ठंडी है और मुझे आदत है ठंडे ठंडे पानी से नहा के बाहर भागना, तो which is good also in a way, but you know how it is इतनी ठंडी में. So really I'm just figuring out कि कैसे मैं अपने रूटीन को शुरू करूँ अर्ली मॉर्निंग, जहाँ पे it is not going to you know where I don't fall sick, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा फॉग रहता है एंड इट्स वेरी वेरी कोल्ड. अच्छा, तो दूसरी बात है कि व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट वी इवॉल्व एज पीपल, डोंट वी? बट ये है कि हम इवॉल्व नहीं हो पाते हैं इज बिकॉज वी हैव टू मेनी हैंगअप्स इन आवर हेड्स, वी डू नॉट विश टू चेंज. I don't know today what topic I should be taking because I remember 2 days ago, that is on 7th, I was all prepared, I was all dolled up, I just sat down. मैंने बोला कुछ ना कुछ बातें करनी है, लेकिन वर्ड्स ही नहीं आ रहे थे मेरे मुंह से. लाइक इट नथिंग वाज कमिंग आउट ऑफ माय माउथ. It's like I was in a deep freeze. In fact, I was all I was all dressed up, or I was mentally prepared. I was like, what do I say? What is the free flow? Sometimes it happens. There's a block. And secondly, though I said it's okay, let go. I mean, आज मुझे let go करने दो. In fact, I was just thinking कि मैं क्या मतलब what exactly, it happens. So if you see people giving you consistent content or content, I'm saying content, so they should be of something of value added content होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बस अभी filler जैसा कुछ. तो yes, I did feel bad because it was more it's very on a very rare occasion that has happened कि मैंने I have picked up my camera and started saying something and then I completely went blank. वो कभी हुआ नहीं है. And this time I was not blank. I was just like my mind was in freeze mode. Okay, I was just wondering कि मैं क्या बोलूँ. So ऐसा होता है, and allow these things to happen to you. Allow these emotions to feel. जैसे I don't know कब से मैंने, it's like 23rd was the last day. 23rd, almost you can say 20 days का gap है मेरा, almost 15-20 days का gap है. मैंने gap रखना पड़ा भी काफ़ी. As I said, there was a lot of things which were consuming my energies in the background. So allow, कभी कभी हमें अपनी रूटीन से डिविएट करना पड़ता है, that which is okay, which is fine. I mean, that is practically fine. It is little uncomfortable, but then it's fine. And the weather in Bombay is extreme. मतलब अभी तुम ऐसा pleasant weather देखोगे, जैसे ही 11 o'clock हो जाता है, it becomes 30-31 degrees, and by 1 o'clock it is 32-33-4 degrees. It's extreme weather conditions over here, but I'm really happy that it's pleasant. As I said, allow those processes to happen, allow things to happen. अगर तुम एक blockage feel करते हो या तुम्हारे पास कुछ, you're just in a deep freeze mode, that is also your means you are going through a process, right? See, when you're going through transformation in life ना, कुछ चीज़ें self-fulfilling prophecies होती है कि नहीं भाई, ऐसी चीज़ें होती है. जैसे there was a time when I was very negative when I was younger. मतलब हर चीज़ में negativity होता है, ओवर थिंकिंग होता है कि नहीं. अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि आई वॉज रियली बूढ़ी इन दोज डेज, कि मैं कितनी ओवर थिंकिंग करती थी, कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी. एंड देन एस्केपिज्म, मतलब आई वॉज नॉट कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन. एक इम्पोस्टर सिंड्रोम, मतलब
even if I'll do something, I'll feel something is not enough, like, and there are times when your thoughts and actions don't align, now you just break down, or I could see that frequent breaking down, मतलब behind the closed doors, or sometimes it होता था कि इतना ज़्यादा you just burst out crying. I hope you understand, ये होता है because you are not doing something which is not aligning to you, और तभी हमें पता नहीं चलता है. We are just following the crowd, we are just a part of sheep, we are just a sheep herd mentality. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मुझे इतने हार्डशिप्स आए, बहुत सारे हार्डशिप्स आए, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, I knew one thing, that I will stick to my conviction. Okay? ऐसा नहीं कि मुझे ऑपोजिशन बार बार मिलती नहीं है, मिलती है, बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इट इज़ नॉट ओपन आउट इन द ओपन, इट इज़ वेरी सटल, इट इज़ बिहाइंड क्लोज, इट इज़ वेरी स्नीकी मैनर, इट इज़ नॉट एन ओपन कॉन्फ्रंटेशन, बट ये बहुत स्नीकी बिहेवियर्स होते हैं, स्लाई कनिंग काइंड ऑफ अप्रोच रहता है. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि कन्विक्शन होना चाहिए. इज आर थॉट्स एंड थिंग्स अलाइनिंग? जैसे पार्टी किया तो सब लोग कर रहे तो हम लोग कर रहे हैं, हसल कल्चर है, सब लोग कर रहे तो हम लोग भी कर रहे हैं, रिलेशनशिप है वाहियात सी, फालतू सी, पसंद नहीं आ रही है, फिर भी हम लोग उसमें चेप जैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें ऑनलाइन स्टेटस दिखाना है, लोगों को दिखाना है कि आई एम ऑल्सो नॉर्मल, आई ऑल्सो हैव समबडी इन माई लाइफ. और I hope you understand, things are not aligning. When people say ना, when I see single people and people say, मैंने बोला इनको पिटी मत करो, maybe they have had their belief, maybe they don't want to take the responsibility of a couple and couple things of being in a couple, which is understandable, which is okay. So let them be. अगर उनकी conviction है कि they are far more better off, it happens. I have been single and independent. मुझे कभी कभी लगता है even in a relationship I'm highly single and independent. I don't know, I am like this, I guess. I think I am like this. So it's okay to calm down, I'm a kind of a person who will give, ऐसे भाई मैं अपने पति को बोलूँगी प्लीज़ अपने मायके जाके आओ, 1-2 दिन के लिए, really, please. Keep yourself healthy and happy, move on with your good enough friends, have a hobby, have a life. ये conjoined twins की तरह joined at the hips वाली चीज़ मुझसे नहीं होती है, नहीं जमती है. So when in Bollywood really ruined love, because that's not the way love operates, that's not the way love is. Maybe in the initial stages, in the infatuation stage, in a fantasy world, but usually not really. और ये झगड़ा करके, नफरत करके, सीरियल्स में दिखाते हैं ना, नफरत करते हैं, फिर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, ये इट्स टू ड्रामेटिक एक्चुअली. ठीक है, टाइम पास. स्टैंड बाय योर कन्विक्शंस. तुम जितनी जल्दी अपने लाइफ में जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, your life will be easier. जैसे I remember when I was working in my 30s, in my 20s, 30s particularly, I was very clear कि after 40 my life is going to be completely different. मुझे डिफरेंट चीज़ें करनी है, मुझे डिफरेंट वे से रहना है, मेरे पास पैसे हो ना हो, I am going to be in a different, I'm going to follow certain different things. So yes, it is so that is one of the reasons I'm really peaceful, because this is the kind of life I had thought for myself. Okay, I am blessed also in many ways. मैं क्यों why would I this? I am blessed, and secondly मेरा nature भी वैसा है कि मैंने ये decide किया हुआ था कि मुझे इस तरह की life चाहिए. मुझे दिखावा नहीं करना है, मुझे लोगों के, मैं सोशल मीडिया पे नहीं रहूँगी, माई सोशल कॉन्टैक्ट्स विल बी नेक्स्ट टू लाइक नील, जैसे ना 5.5% जहाँ मुझे करना है, जहाँ मुझे कॉन्टैक्ट्स रखने हैं या कुछ है तो ही तो व्हेन यू एंड एज यू ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर, मेरे जो बाउंड्री लेवल्स है या मेरा थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है. So I am also practically surprised, because I am a very extrovert kind of a person. I am an extrovert. मेरे पैरों पे चक्री लगी है.
आई डोंट थिंक कि हर्मिट वाली मैंने ज़िंदगी, मंक वाली ज़िंदगी जब मैंने जीना शुरू कर दिया ना, तभी आई रियलाइज़ द वैल्यू ऑफ सॉलिट्यूड. और मैं सच में बोलती हूँ, अभी भी मुझे जब ऑर्गेनाइजेशन से, अभी भी मेरे 2-3 कमिटमेंट्स से, संडे को भी था, मैंने कैसे तैसे, मैंने बोला भगवान वो मुझे रिमाइंड करके बुलाए ना. आई वॉज जस्ट थिंकिंग इन माई माइंड क्योंकि आई वॉज नॉट रियली कीन टू डू दैट, समथिंग टू डू विद पॉलिटिकल. वो कुछ इलेक्शन का कुछ क्या था वो, इलेक्शन कार्ड को क्या वेरीफाई करना ऑन द वेबसाइट. मैंने बोला जिनको वोट करना है करे, नहीं तो मुझे क्या लेना देना. बट देन दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज सच, नो इट वाज सिविक एंड ऐसे पॉलिटिकल चीज़ों में पड़ा हो. इट्स दैट अवेयरनेस काइंड ऑफ है ना वो, ऐसे वाला. आई शुड नॉट बी साउंडिंग वेरी लेम, बट let me tell you one thing, you know, what we see with our eyes is not the reality. There is no elections, there's only selection. जिनको आना है सत्ता में वही आएंगे. और ये सब चोचलेपना सर्कस होता है just to involve us and waste our time and to keep us under control. We are dummies. अभी मैं डिविएट कर रही हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, बट that's the way it is. So जब तुम्हारे थॉट प्रोसेस और एक्शंस मैच नहीं करते ना, तो इवन इन अ रिलेशनशिप मुझे बहुत बुरा लगता है कि काफ़ी बार मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें की. आई हंग अराउंड विद पीपल, वेस्टेड माई टाइम, यूजलेसली हैंगिंग अराउंड, बिहेविंग सो फेक. डोंट डू दिस. बिलीव इन योर कन्विक्शन. तुम जितने, यू विल बी कंफर्टेबल इन योर स्किन, यू विल बी लिटिल, यू विल हैव वेरी लिटिल वेल विशर्स. मैंने बोला एक आध वेल विशर भी होंगे तो इट इज़ गुड इनफ. मुझे ना पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था आई वॉज लिविंग इन अ फिश टैंक विथ शार्क्स, पिनारास, बाराकूडाज, एनाकोंडाज, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, ड्रैगन्स, पता नहीं क्या क्या, मेरे पाइथन्स, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी. ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि ऐसी वाली फीलिंग ही थी. So ऐसा है. That's all I want to say. Take care of yourself. Bye.